This call is now being recorded. Okay. Come on, guys, can we start? Yeah, before we start, first of all, a very happy International Women's Day to all ladies over here. काश हम लोग का भी डे होता ना, Men's Day. Fine, okay. So let's start with the today's session. आरती can come, पीछे वाला आगे आ जाइए यार. मैं इतना भी भयानक नहीं हूँ यार, भी तुम लोग इतना पीछे पीछे बैठते हो. और मे बी लाइक यू गाइस वांट टू एंजॉय बालकनी शो, ऐसा कुछ है क्या? मैटनी शो, बालकनी शो, ठीक है? कम ऑन गाइस, लेट्स बिफोर वेस्टिंग मोर टाइम इन दिस, सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन 1.3 and in the preceding lecture we have seen is discrete time system. Fine. Question to arise, what is the meaning of system? That we have seen that in case if I want the real time signal, an analog signal to process by means of a computer or by means of a mobile phone, I need to first convert a given real time signal x of t to x of n. How to convert? What is the procedure to convert x of t to x of n? I require what? Yeah, I require ADC. But what is happening in the ADC? Sampling followed by quantization. That's what we have seen. The sampling followed by quantization will give me x of n from x of t. I hope the things are clear to you. Okay? Yeah, you may. Fine. Done. Then after the operation is done in the system, then the output again we convert from x of n back to x of t using DAC, again desampling and like the quantization. Fine, understood. Now, in case of system, there are types of system. Like you have a static system, dynamic, time variant, time invariant. So we will be discussing today on those. Like what is the meaning of static, dynamic, then causal, non-causal. So in the preceding session, we already discussed about this thing. Fine, there is a system x of n, input signal, y of n, output signal. Then you have y of n equal to transformation applied on x of n. Classification of system that we have seen, we are talking about static, dynamic, causal, non-causal. Fine. So as far as we remember that we are done with static dynamic. Yes, static means memory less. Dynamic means memory, because in case of static you only deal with present or current inputs. Fine. Then you talked about causal, non-causal. Now what is remaining, sir? The remaining part is this. This is the remaining part. You have now linear, non-linear, time variant, time invariant and stable, unstable system. So आज के session में, today's lecture, in today's session, we will be dealing with this. Fine, understood? Already I have shared the notes with you with the heading as DT system. You can check out on the WhatsApp group. Online students, you can give thumbs up if you have received this thing in your WhatsApp group. Kindly check whether you have this kind of notes available with you. 11 pages ka notes hai. You can give the thumbs up if you have received it. Yes, yes, online students, fast. Tanmay, Hardik, Himanshu. Yes, very good. So I can see thumbs up are coming up from Prathamesh. Good, very good. Okay, let's start, sir. So now in the today's session, we'll be dealing with linear, non-linear, time variant, invariant, stable, unstable. Before we start this, linear, non-linear, what is the meaning of linear? Any guesses? Any idea what the meaning of linear? What is the meaning of linear? Any guesses? Any idea? In a straight line. Exactly, exactly, sir. Exactly. You are rightly predicted, sir. कि यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे लिखा गया है line. वर्ड में वर्ड बोलता है लाइन, मतलब यहाँ पे लाइन की बात होने वाली है. नॉन लाइन मतलब लाइन नहीं होने वाला है. एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन है. फाइन. इज दिस अ लाइन?
So yes, I can say first one is a line and second one is not a line. Understood? Okay. Sir, what is the meaning of this? What you're trying to predict? Okay, I'll give an example to you. Just a minute. I'll give a very good example to you. Now, just have a look. कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सिस्टम, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एक सिस्टम होता है, ठीक है, किस तरीके से आप सिस्टम ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको कि सर मैंने यहाँ पे एक सिस्टम ड्रॉ किया है, दिस इज द सिस्टम, फाइन, एंड दिस सिस्टम को हम इनपुट देने वाले हैं. कौन सा इनपुट देंगे हम लोग? x ऑफ n, डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट सिग्नल, DTS, discrete signal, fine, discrete signal x of n, and this x of n when fed to system, I will get output called as y of n. I hope you all agree to this. Yes or no? Fine, fantastic. Now let's take some certain examples. Let us assume that this system is going to do what? It is going to multiply by 2. समझा क्या बोला मैंने? सिस्टम क्या करने वाला है कि जो भी दोगे उसका डबल करके आपको देने वाला है, जैसा हेरा फेरी मूवी में था, एक का डबल. फाइन, तो यहाँ पे एक का डबल होने वाला है. मतलब क्या करने का, बोलने का मतलब ये है कि समझो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल नंबर 1 4 दिया, क्या मिलेगा सर? 8. वेरी गुड सर, टैलेंटेड स्टूडेंट है यहाँ पे. मैंने दिया 3, क्या मिलेगा मुझे? 6 मिलेगा मुझे. फाइन, आई होप यू ऑल अग्री टू दिस. नाउ यू टेल मी सर, इफ आई डू 4 + 3, क्या आंसर आया? 7. 8 + 6 14. फाइन, क्या क्या मैंने सर? आई सिंपली एडेड ओवर हियर, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. मैंने सिंपली यहाँ पे मैंने ऐड किया है. डन. अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूं और अभी मैं थर्ड केस में क्या करने वाला हूं? इनपुट 7 दूंगा, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? अरे यार सेम सेम सर, सेम. क्या बोलने का उसको? सिस्टम इज लीनियर इन नेचर. सिस्टम इज लीनियर इन नेचर. अंडरस्टूड? सिंपल. चलो अभी कुछ हम लोग नया करके देखते हैं. ट्विस्ट. क्या ट्विस्ट करना है सर बताइए? क्या ट्विस्ट करना है? अभी क्या हम लोग नया चीज करना है यहाँ पे. So I'll just erase the unnecessary unwanted parts and then now we'll discuss something, another discussion. अब ये जो सिस्टम है, केस नंबर 2, फाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. केस नंबर 2, अब ये सिस्टम क्या करने वाले कि जो भी इनपुट रहेगा बॉक्स में, जो भी डब्बे के अंदर वैल्यू आने वाला है, वो डब्बे का वो स्क्वायर कर देगा. Got it, sir? Fine. Let's start. Example number 1. दे दो भाई 4. 4 4s are 16. Very good, sir. Fantastic. Second standard mathematics. 3 का स्क्वायर 9. Very good, sir. अभी काम करिए, अभी दोनों को ऐड करिए आप. 4 + 3 आंसर बोलिए कितना होगा? 7. क्या आंसर आएगा? 25. डन. नेक्स्ट. नाउ यू कम हियर सर. अब मैं इनपुट क्या देने वाला थर्ड केस में? अब इनपुट क्या देने का? 7. 7 का स्क्वायर, मामा नॉट फेयर. सिस्टम इज नॉन लीनियर इन नेचर. समझा? ओके. अब मुझे बताइए आप अलग स्टाइल में, सर हमने 2 सिस्टम देखा. कौन सा 2 देखा सर हम लोगों ने? एक देखा 2x वाला, जहां पे आप डबलिंग, एक का डबल हेरा फेरी कर रहे थे. सेकेंड टाइम आपने क्या किया सर? डब्बे का स्क्वायर कर दिया. क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम? स्ट्रेट लाइन. क्या बात है सर? द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. कहने का मतलब ये है 0 पे 0, फाइन, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, फाइन. बोलिए बोलिए 4 पर 8. And if I try to join these points, I will get a straight line. Linear. समझा? यहां पर क्या होगा भाई? इधर क्या होगा? What will be the graph? पैराबोला. क्या प्यार से बोला, प्यारा बोला. वाओ, हैप्पी वुमेन्स डे. फाइन.
Fine. If this is a line, no line, non-linear. Non-linear. समझा? बोलने का ना क्या मस्त समझाया है भाई. ठीक है, चलो, वेरी गुड. उस दिन भेजा था मवाली भाई का मैंने आपको वीडियो. आरती इज फैन ऑफ मवाली भाई. She always tunes to Red FM and watch मवाली भाई. Okay, now, सर यहां पर अब मैंने क्या किया है वो आप समझिए. यहां पे हमने क्या किया है, मैंने पहले 4 भेजा, 16 मिला, फिर 3 भेजा, 9 मिला. समझा? फिर हम लोगों ने 4 + 3 7 करके भेजा. ये जो हमने जो कुछ भी किया, ये एल्गोरिथम को कहा जाता है सुपरपोजिशन. Do you know the superposition theorem? क्या बोलते हैं superposition? If you have 2 inputs, don't give both inputs together. Give one, forget another. Give another, forget previous. The resultant output will be equal to if both the inputs are given together. बराबर ना? Example. थाली का प्लेट है, लंच प्लेट, चावल है, दाल है, सब्जी है, साथ में खाता क्या भेल बना के? चावल खाने का, दाल को भूलने का, सब्जी खाने का तो चावल दाल को भूलने का, पेट पे मिक्सचर हो जाता है. समझा आपको? दैट इज द मीनिंग ऑफ रियल टाइम सुपरपोजिशन थ्योरम. यू टेक वन, फॉरगेट अनदर, टेक वन, फॉरगेट अनदर. द रिजल्टेंट आउटपुट विल बी बैलेंसिंग. अगर सुपरपोजिशन थ्योरम सफाइस हो गया, कंप्लाई हो गया, लीनियर. कंप्लाई नहीं हुआ तो नॉन लीनियर. सर यहाँ पे कंप्लाई हो रहा था, ये वाले केस में कंप्लाई हो रहा, सेकंड वाले केस में नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि 4 16 7 25 मैच नहीं हुआ, सुपरपोजिशन थ्योरम मैच नहीं हो गया वहां पे. फाइन, काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस सर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम? What is the meaning of linear and non-linear system? Agreed? Okay, चलो. अब सर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. लीनियर नॉन लीनियर सेपरेट न्यूमेरिकल 10 मार्क्स के लिए आने वाला है. ये इक्वेशन देख के डरने का नहीं. सुनो इक्वेशन क्या बोलता है. इक्वेशन बोलता है कि एग्जाम्पल हमारी पास में यहाँ पे एक सिस्टम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y ऑफ n. कहां से इधर है y ऑफ n? लकी नंबर y ऑफ n. अरे भैया लिखा है ना y ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट? डब्बे का स्क्वायर. मतलब यहां पे मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूं, यहां पे कुछ मैं प्रोसेसिंग करने वाला हूं. यहां पे लिखता हूं y ऑफ n इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन x ऑफ n. अग्रीड? अभी ये एक्सप्रेशन को मैं यहां पे यूज करता हूं. अभी सेम एक्सप्रेशन को मैं यहां पे यूज करने वाला. मैंने यहां पे लिखा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन व्हाट? a1 टाइम्स x1 ऑफ n प्लस a2 टाइम्स x2 ऑफ n. समझा क्या बोला मैंने यहां पे? व्हाट इज a1 a2? कोएफिशिएंट्स a1 a2 और व्हाट? कांस्टेंट क्वांटिटी दैट 2 टाइम्स x ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स x2 ऑफ n. अभी ये जो आपको इनपुट मिला, इसके ऊपर अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, एंड इफ दैट फॉलोज a1 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन x1 ऑफ n प्लस a2 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन x2 ऑफ n, अगर ये इक्वेशन को कंप्लाई किया, मतलब सुपरपोजिशन को फॉलो किया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर सिस्टम. अंडरस्टूड? अभी भी नहीं समझा तो क्या कहना चाहते हो? वेट, टेल मी what will be the different d by dx of 3x. ऐसा नहीं बोलने का. 3 कैसा आया? 3 सर 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो. 3 को बाहर निकाला, ट्रांसफॉर्मेशन x पे लगाया. उसी तरीके से a1 कांस्टेंट है, इसीलिए a1 बाहर आया और t जो है वो केवल x1 पे अप्लाई हो गया. समझा? a2 बाहर क्यों आया सर? बिकॉज वो कांस्टेंट है. जिस तरीके से आपने मस्के में से बाल निकाल के बाहर फेंक दिया, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने 3 को बाहर निकाल दिया, a1 को a2 को बाहर निकाल दिया. t सिर्फ मैंने x1 x2 पे अप्लाई कर दिया.
सिंपल. ओके, आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर टू यू. अगर सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो नहीं किया तो क्या बोलने का, नॉन लीनियर सिस्टम. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जो सेम एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया, सेम एग्जाम्पल्स आर हियर. आई विल शो यू, एक सेकंड. ओके, सेम एग्जाम्पल. एक टी है, ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम. x1 दिया तो y1 मिलेगा, x2 दिया तो y2 मिलेगा, x1 प्लस x2 करके दिया तो y1 प्लस y2 आना चाहिए, तो लीनियर होगा. मतलब 2 4 3 6, 2 plus 3 5, 4 plus 6 10, and yes, 5 2s are 10. System is linear in nature. How will be the graph? A straight line. Got it, sir? Okay. Non-linear example, x square. 2 दिया 4 मिला, 3 दिया 9 मिला, 3 3 is 9, 2 plus 3 5, 5 का स्क्वायर 25 plus, is it 9 plus 4 equal 25? No, the system is not linear in nature. चलो भाई अभी बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, y of n is equal to n times x of n. Y of n is equal to e raised to x of n, and y of n equal to x square of n, whether they are linear or non-linear. What do you say? What do you say? देखिए सर कैसे करना है. फाइन, करना कैसे एग्जाम में. कंडीशन फॉर लिनियरिटी क्या है, ये कंडीशन है. ठीक है, हमारे पास में क्या है, y of n is equal to n times x of n. Y of n is equal to n times x of n. Then what is right hand side? a1 t x of 1 of n plus a2 t x2 of n. a1 t x1 of n, a1 t x of n, a1 n x1 of n. समझा क्या किया मैंने? ओके, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? ये x छोटू है, ये x बड़ा है. छोटे से बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि उसने टाइगर बिस्किट खाया. यू नो टाइगर बिस्किट, अरे मिलता है मार्केट में टाइगर बिस्किट. कौन है वो टाइगर? ये है वो टाइगर बिस्किट. ये टाइगर बिस्किट खाया तो छोटे से बड़ा हो गया. मतलब मैंने x1 ऑफ n पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो क्या बन गया, x1 ऑफ n. समझा? ठीक है, उसी तरीके से x2 ऑफ n था, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो बन गया x2 ऑफ n. फाइन. सो नाउ आई कैन से कि नाउ द फाइनल आंसर विल बी a1 n x1 of n plus a2 n x2 of n. बड़ा x बड़ा x. समझा? RHS part is complete. Now we are coming to LHS वाला part. t times a1 x1 of n plus a2. Okay, n a1 छोटा x बड़ा x हो जाएगा, छोटा x बड़ा x हो जाएगा. फाइन. कैन आई से LHS equal to RHS? Yes, system is linear in nature. Any doubt in this case? नहीं समझा क्या चल रहा है? Go through करिए सर पूरा. Online students, any question on this point? Purposely I have minimized the screen so that the entire solution will be in front of you, like what I have done. LHS equal to RHS, मुझे प्रूव करना है. छोटा x को बड़ा x लिखा गया है, छोटा x को बड़ा x लिखा गया है क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया. टाइगर बिस्किट खिला दिया तो वो छोटे से बड़ा बन गया. सेम चीज तलेले सर ने किया था वहां पे. इफ यू रिमेंबर, x ऑफ n होता था, आप लिखते थे कैपिटल x ऑफ ओमेगा व्हेन यू अप्लाई फ्रीक्वेंसी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. यस और नो? कैपिटल x लिखा था ना वहां पे आपने, कैपिटल x ऑफ ओमेगा इक्वल टू समेशन अर्निंग फ्रॉम x इक्वल टू j ओमेगा n. ओके, कैपिटल x इज द नोटेशन for transformed x of n. Kindly make a note of this. मैं इसको टाइगर बिस्कुट बोलता हूँ कि टाइगर बिस्किट खिला दिया आपने तो छोटे का बड़ा बन गया. ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन है सर. अब ये वाला क्वेश्चन है, y of n is equal to e raised to x of n. फाइन.
फाइन, फर्स्ट स्टेप समझा आपको. ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन x1 ऑफ n, तो e रेज टू कैपिटल x1 ऑफ n हो जाएगा, x2 ऑफ n e रेज टू कैपिटल x2 ऑफ n. व्हाट विल RHS? a1 e रेज टू x1 ऑफ n प्लस a2 e रेज टू x2 ऑफ n. Is right hand side clear to you or not? बराबर है. ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई किया तो ये x1 हो जाएगा कैपिटल X, ये x2 हो जाएगा कैपिटल X, एंड इट इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देन वी सिंपली एडेड देम. नाउ अब क्या बोलता है वो? LHS इज व्हाट? a1 x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n, और ये पूरे कॉम्बिनेशन पे अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है. तो कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? e रेज टू a1 x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n. Yes or no? As per the rule of indices, what will happen? E raised to a1 x1 n dot e raised to a2 x2 of n. Now you tell me, do you feel LHS is the same as RHS? No. So system is non-linear. Yes or not? सर नहीं समझा क्या किया. अरे भाई सुनिए, E है E square and E cube. Tell me the answer of this fast. E square and E cube. Tell me the answer. Calculator sir, fast. क्या आंसर आया भाई? 2.71 into 2.71, that is E square. 7.344. That right here 7.344. Similarly, you now tell me the value for E cube. So multiply by 2.71. कितना आया? 19.9 है ना? I hope you agree to this. So I simply write here as it. Now this will give me answer as 19.9. Fine. This is the answer of E square and E cube. Now on the same lines, you tell me what is the value for 2.71 raised to 5. 2.71 raised to 5 निकाल के रखे कोने में, क्योंकि कैलसी खुला है करके बोल रहा हूं मैं आपको, जबकि थर्ड स्टेप है हमारा. What is the answer of this? 2.71 raised to 5. 2.71 multiply by 2.71 multiply by 2.71 multiply by 2.71 multiply by 2.71. करेक्ट है? यही है आंसर आप लोगों का. फाइन. आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस आंसर. 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया मैंने यहाँ पर. Okay, so I have here 2, that gives me 146.16. So I simply write over here as that e raised to 5 will give me around 146 point, क्या था? 146. Okay. Now you tell me sir that हमको ये पढ़ाया गया है कि अगर मुझे सिस्टम लीनियर है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करना है तो हमको क्या करना पड़ता है? व्हाट यू सपोज टू डू सर? e raised to 2 plus e raised to 3. व्हाट इज द आंसर यू गॉट? क्या आंसर आएगा? ये 19 मतलब ये अराउंड 20 है और ये कुछ 7 है. 27 कुछ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे. एज गुड एज दैट. इज इट मैचिंग? वेरीफाइड. आप वैसे भी करके चेक कर सकते हो. Put some values, arbitrary values. See, e square is this, e cube is this. So 2 plus 3, 5. E5 is this. And if I do the addition of the RHS, is it matching with the answer? No, it doesn't match. It is non-linear. बोलिए सर. हाँ, obviously. इंटेंशनली मैंने मिनिमाइज करके रखा है ताकि पूरा सोल्यूशन आपके सामने हो, so that you can solve this question in your EAC or in an assignment question like this. Assignment question दिया है आप लोगों को. Check whether the given system is linear or non-linear. This is how you have to solve.
सर मैं तो गेट का एग्जाम देने वाला हूं, मैं तो एप्टी देने वाला हूं, क्या यहां पे लिखते बैठूंगा मैं? You have just have to check what is the equation and try to plot the graph. इसका ग्राफ लीनियर है कि नॉन लीनियर आएगा? खत्म, सिस्टम नॉन लीनियर, सिस्टम नॉन लीनियर, फिनिश, स्टोरी इज ओवर. टेल मी द ग्राफ ऑफ दिस सर, पहला वाला y is equal to n x of n. अरे भाई ये तो अपने को इसकी याद दिलाता है. किसकी याद दिलाता है? बोलिए बोलिए. y is equal to mx. क्या बात है यार, खत्म. दिस इज द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. बचपन में पढ़ाया था आपने को. सिस्टम इज लीनियर. गेट में ऐसा करने का उसको थोड़ी मालूम है तुमने शॉर्टकट यूज किया. पूछा तो बोलने का नहीं नहीं, t a1 x of n plus a2 x of n equal to a1 क्या था भूल गया. बोले बहुत मेहनत की बेचारे ने एड़ा बनाने का. फाइन, चलो वेरी गुड सर. हाँ ओके ओके, डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट. टाइगर बिस्कुट खिलाने का तो छोटे का बड़ा बन जाता है. सेकंड इक्वेशन ये वाला. सी यहां पे क्या था, x1 plus x2. ओके, इधर क्या है, e raised to xn, तो xn हो जाएगा भी x1 plus x2. गेटिंग? This x of n will become now x1 of n plus x2 of n with multiplication by respect to scalars. यहाँ पे जो स्केलर जो था a1 a2 उसको मैंने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया वहां पर मैंने. तो a1 into x1 of n plus a2 x2 of n, that gives me the answer. And then you have to go with the indices rule. When there is addition, this means there is a multiplication. यहाँ पे माइनस होता था कैसे लिखता मैं, डिवाइड में लिखता मैं उसको. I hope the confusion is clear to you. Good, very good. Any confusion, any doubt in this case? चलो, if you have understood, then let's give a try for the third question on your own. दिख के लगता है नॉन लीनियर है, x स्क्वायर है वहां पे. मेरा बच्चा डायरेक्ट बोलेगा देख के, अरे भाई नॉन लीनियर है, देख के कंफर्म. अभी आप उसको दिखाइए लाली पाउडर लिपस्टिक लगा के, वुमेन्स डे सेलिब्रेट करिए. स्टार्ट. कम ऑन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फटाफट. Try to do on your own. Solution is there in front of you, no problem. But try to do on your own. If you're getting stuck, then you can look at the solution provided over there. Solution आपके सामने है. देख के पता चलता है कि सिस्टम नॉन लीनियर है. अभी लाली पाउडर आपको लगा के उसको दिखाना है कि भाई हाँ हो गया नॉन लीनियर, LHS नॉट इक्वल टू RHS. कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट होते, लिखते हैं RHS इक्वल टू रणवीर सिंह, LHS इक्वल टू दीपिका, हेंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, सिस्टम इज नॉन लीनियर. इतना कौन याद रखेगा, a1 p x of n plus a2, कुछ भी लिखते. नजीब सर रहा तो नहीं मिलेगा, कोई और रहा तो मिलेगा. अभी कोई और में आप, you can fill the blanks. And if you want to know the names of that, you can go to SPIT trolls and check out over there the art and the artist. Fine, okay. Now we are going to discuss something about time variant and time invariant system. इसका मतलब क्या है भाई, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट? एनी गेसेस? टाइम वेरिएंट मतलब जो वक्त के साथ में बदलता है, जो परिवर्तन पे भरोसा रखता है. व्हाट अबाउट इनवेरिएंट, जो साला कभी नहीं बदलता. Which is better? Which system is better? बदलने वाला या नहीं बदलने वाला? What do you feel?
ठीक है, लेट्स स्टार्ट सर। आई गिव एन एग्जांपल टू यू। यही एग्जांपल लेते हैं हम लोग जो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पे हमारे पास में एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है सर, और ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, 4 दिया तो 16 मिला, 3 दिया तो 9 मिला। यस और नो? कभी किया 9:37 पर लॉक। ठीक है, दिन 8 मार्च वुमेन्स डे, कल है 9 मार्च। कल के दिन में यही किया। क्या किया? 4 दिया तो 17 मिला। सही या गलत? क्या आना चाहिए था? 16 आना चाहिए था। 4 दिया तो 16 आना चाहिए था, which is correct as per theory. But when I did this, maybe tomorrow, day after tomorrow, maybe in future, I found I got some irrelevant answer which is not at all matching with theory. Is it correct or not? Should it happen or not? It should not happen. जब मैंने ये फोन खरीदा वो टाइम पे मुझे ये बताया गया कि ये फोन जो है ये आपको 1 दिन का बैकअप देगा, बैटरी बैकअप। क्या बोला? 1 दिन का बैटरी बैकअप देगा। ये फोन को आज 4 साल हो गया, 4 साल से यूजिंग दिस फोन, Redmi Note 5 Pro। 6 घंटे में खत्म हो जाता है, बैटरी डाउन, चार्जर ही घूमना पड़ता है साथ में। इट शुड हैपन और नॉट शुड हैपन? क्यों होता है सर ऐसा? Why does it happen? एग्जैक्टली, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, एजिंग फैक्टर कहते हैं उसको हम लोग। यस और नो? These systems are hence known as time variant system. These systems are hence known as time variant system. So on the contrary, can you tell me what's the meaning of time invariant system? क्या एग्जांपल ऑफ टाइम इनवेरिएंट का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम इनवेरिएंट? मींस जो बोला था 4 साल पहले कि 1 दिन बैटरी चलेगा तो वो आज भी 1 दिन चलना चाहिए, मतलब वो आदमी कभी बूढ़ा होना ही नहीं चाहिए। एग्जांपल सलमान खान, अनिल कपूर, एवरग्रीन। Yes or no? Fine. Okay. Now we'll be discussing on this कि इसमें क्या करना है। पहले वर्डिंग्स पढ़ लीजिए आप। टाइम वेरिएंट सिस्टम मतलब वो होता है जहां पे इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वेरीज विथ टाइम। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वेरीज विथ टाइम। नहीं समझा सर? कहने का मतलब क्या है यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप? अरे भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं y is equal to 2x, मतलब क्या किया? 3 दिया तो 6, 4 दिया तो 5 दिया तो ये क्या बन गया सर? दिस इज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ऑफ व्हाट? इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप चेंजेस, वेरीज विथ टाइम। 3 दिया 6, 3 दिया 7, 3 दिया 5। ये क्या है? मजाक करके रखा है क्या? 3 दिया तो 6 आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ डबल वाला सिस्टम। बट ये वैल्यू कभी कभी चेंज होना शुरू हो रही है बिकॉज ऑफ एजिंग फैक्टर, व्हाट यू कॉल राइट नाउ। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वेरिएंट सिस्टम। इफ आई टॉक अबाउट टाइम इनवेरिएंट, दिस इक्वेशन will prevail for all time. This equation will prevail for all time. आप कभी भी 3 दो, आपको हमेशा 6 ही मिलेगा, भले आज दो या 10 साल बाद दो या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपको वैल्यू दे रहे हैं 3, 6 भी सेम। अंडरस्टूड? नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे करना है इसको? x of n, y of n, डॉट 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 y of n minus k, x of n minus k, y of n comma k। थोड़ा देख लो यहाँ पे, फिर डायरेक्ट हमें शॉर्टकट पे आने वाले कैसे करना है। वहां पर x of n दिया तो y of n मिलेगा, y of n को डिले किया तो क्या मिलेगा?
y of n माइनस के। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब यहां पर मैं आउटपुट को डिले कर रहा हूं, आउटपुट को डिले करूंगा तो क्या मिलेगा? y of n क्या हो जाएगा? y of n माइनस के। लेकिन अगर मैं इनपुट को डिले करता हूं x of n के जगह पे x of n माइनस के, so I'll get output as y n comma k। अब ये n कॉमा क्या है इसको हम बाद में समझेंगे, when we start with examples। और फिर वो बोलता है कि अगर दोनों सेम हो गया तो क्या बोलने का? इनवेरिएंट। दोनों सेम हो गया तो क्या बोलने का? इनवेरिएंट। दोनों सेम नहीं हुआ तो क्या बोलने का? वेरिएंट। कुछ नहीं समझा, बराबर ना? कुछ नहीं समझा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। चलो अब हम लोग चीजें को और डाइल्यूट करेंगे। क्या बोला यहां पर मैंने? अगर ये दोनों सेम हो गया, ठीक है? कितने लोगों ने यहां पे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखा है? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन रेज देयर हैंड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। उसके अंदर जैक स्पैरो मालूम है? कैप्टन जैक स्पैरो, जॉनी डेप जो उसमें जिसने रोल किया है, उसके पास में एक बंदूक था। What was speciality of that gun? Exactly, that gun was having only one shot. That gun was having only one shot. ये बंदूक में सिर्फ एक ही गोली था। फाइन। वो गोली का नाम क्या था? वो गोली का नाम था नॉट। कुछ भी सर, खोल के देखा था क्या? हाँ खोल के देखा था मैं, ठीक है। वो गोली का नाम क्या था? नॉट। अब सुनिए क्या बोलता हूं मैं। मैंने क्या बोला? ये दोनों अगर सेम है तो क्या बोलने का? नॉट वेरिएंट। गोली यहां चला दिया। समझा सर? अब भी नहीं समझा, क्या बोलने की कोशिश कर। रुकना भाई, अब समझेगा आपको, रुक जा तो, जस्ट वेट। अगर दोनों सेम नहीं है क्या बोलने का? नॉट सेम। नॉट सेम। कैन आई यूज नॉट नाउ? मार दिया ना यार, गोली खत्म हो गया, बंदूक में कुछ नहीं है, पिस्तौल खाली है। क्या बोलने का अभी? वेरिएंट बोलने का, बिकॉज आपने नॉट ऑलरेडी यूज कर दिया है। समझा? सेम, नॉट वेरिएंट। क्यों नॉट वेरिएंट बोला? बिकॉज बंदूक में अब तक गोली है, आपने केवल सेम बोला है, नॉट वेरिएंट, नॉट सेम, वेरिएंट। बैठ गया माइंड में? ओके, वेरी गुड। अब सुनिए सर क्या करने वाले हम लोग। ये देखिए यहां पे इक्वेशन में लिख के रखा है इक्वल, मतलब सेम। हम क्या बोलेंगे? सेम, नॉट वेरिएंट, नॉट सेम। खत्म, नॉट मार दिया उधर, वहां पे गोली खत्म, वेरिएंट। बैठ गया माइंड में? सिंपल। ओके, अभी ये n माइनस के और n कॉमा के, ये क्या कहानी है ये समझा दीजिए सर। ओके सर, आ जाइए यहां पर। यहां पे क्या लिखा है मैंने? y ऑफ n। इधर क्या लिखा है? x ऑफ 2n। स्टॉप। अब क्या करने का? कुछ नहीं सर, सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले थोड़ा वर्डिंग्स पढ़ लीजिए, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, बाद में हम हमारी औकात पे आ जाएंगे। y ऑफ n माइनस के, ठीक है, y ऑफ n कॉमा के, इसको बोलने का आउटपुट में शिफ्ट किया, शिफ्ट आउटपुट। फाइन। इसको क्या बोलने का सर? शिफ्ट इनपुट। समझ गया? फाइन। ये क्या है सर? आउटपुट। n माइनस के आउटपुट, n कॉमा के इनपुट। आई होप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने आउटपुट को बोल दिया n माइनस के तो समझ में आता है भाई, माइनस से मतलब आउटपुट में शिफ्ट किया है। अब कौन बचा? इनपुट। इनपुट के लिए क्या बोलने का? n कॉमा के, n माइनस के नहीं बोलने का। अब सुनिए सर, यहां पे ध्यान दीजिए आप। ये तो हमेशा y ऑफ n ही रहेगा। y ऑफ n इक्वल टू, y ऑफ n इक्वल टू, y ऑफ n इक्वल टू, छोड़ दीजिए y ऑफ n को, तो कॉमन है, छोड़ दीजिए उसको। क्या बचा अभी? इनपुट। इनपुट में मैंने लिखा x ऑफ n
मल्टीप्लाइड बाय n। क्या लिखा है मैंने यहां पर? n इंटू एक्स ऑफ n। अभी सुनिए सर, अगर ये आपको समझ गया मतलब आपको पूरा टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट का पूरा लॉजिक बैठने वाला माइंड में। अभी आप इसको देखिए क्या लिखा है यहां पर, पढ़िए पढ़िए, फिर से बोलिए। अभी मैं थोड़ा अलग स्टाइल में पढ़ता हूं, ब्रैकेट के अंदर n माइनस के। फिर से बोलिए मेरे साथ में, ब्रैकेट के अंदर n माइनस के। खत्म हो गया। जब कभी मैं इसकी बात करूंगा मतलब लिखने का n x n माइनस के। समझा क्या बोला हम लोगों ने? ब्रैकेट के अंदर n माइनस के, ब्रैकेट के अंदर n माइनस के, इसीलिए मैंने n माइनस के x के अंदर ब्रैकेट में कर दिया। ये n के साथ में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं किया। यहां पे क्या लिखा है? n कॉमा के सार्वजनिक है सर, n कॉमा के जहां जहां n वहां वहां n माइनस के, जहां जहां n वहां वहां n माइनस के। क्या हो जाएगा सर? n माइनस के इधर भी आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर भी आ जाएगा। यहां पे क्या लिखा है सर? कॉमा, कॉमा लिखा है। कॉमा मतलब जहां जहां n वहां वहां n माइनस के। सर आर बोथ सेम सेम, दोनों सेम है क्या? नॉट सेम। सिस्टम इज, क्या बात है, समझा सर? चलो नाउ स्टार्ट। अभी लाली पाउडर समझ गया कॉन्सेप्ट क्या है? अब लाली पाउडर, शिफ्ट आउटपुट y n माइनस के इज इक्वल टू 2n माइनस के, देन शिफ्ट इनपुट 2 टाइम्स ऑफ n माइनस के 2n minus 2k, both are not same, okay, then system is variant. समझा क्या करने का? okay. चलो भाई अभी ये वाला बताओ मुझे। सॉल्व 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 फटाफट। हो गया पढ़ा के? पढ़ाकर हो गया है। क्या करोगे भैया? n माइनस वन माइनस के बराबर n माइनस वन माइनस के ब्रैकेट के अंदर, फिर क्या करने का? n तो क्या करने का? n माइनस के आर बोथ सेम। यस, सिस्टम इज इनवेरिएंट। सेम नॉट वेरिएंट, क्योंकि अभी भी गोली है सेम नॉट वेरिएंट, नॉट सेम वेरिएंट। वो गोली याद रखने का, लास्ट शॉट। कम ऑन ट्राई दिस क्वेश्चन, थर्ड वाला। थर्ड वाला ट्राई करिए। y of n इज इक्वल टू 2x ऑफ n, n माइनस के ब्रैकेट के अंदर n माइनस के, माइनस के सिर्फ लिखने का, माइनस के n कॉमा के मतलब जहां जहां n वहां वहां n माइनस के, जहां जहां n वहां वहां n माइनस के। सर एक चीज यहाँ पे याद रखिए, जस्ट पे अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने सर? 2n ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर n माइनस के, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2n माइनस के। n को n माइनस के नहीं करना है, n को n माइनस के नहीं करना है, 2n माइनस के। सेकेंड टाइम क्या करना है? जहां जहां n वहां वहां n माइनस के, तो n माइनस के रिप्लेस कर दिया n के साथ में। यहाँ पे डाउट आता है सर, यहाँ पे तो आपने कहा था कि ब्रैकेट के अंदर n माइनस के, तो n माइनस के हो जाएगा, तो ये जगह 2n माइनस 2 के होना चाहिए था। सिर्फ माइनस के आपको एक्स्ट्रा लगाना है। कॉशन है, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे मिस्टेक होता है। ठीक है, चलो ये वाला कंप्लीट करिए सर आप। थर्ड एग्जाम्पल, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? नहीं समझा? क्या समझा यार? कुछ भी नहीं समझ में, क्या पका रहा है? ऐसा कोई है यहाँ पे बोलने वाला? तो प्लीज हेल्प मी आउट।
2n वाला। ओके बेटा, सुनो ध्यान से। y ऑफ n माइनस के, इसका मतलब क्या होता है? शिफ्ट आउटपुट। n कॉमा k का मतलब क्या होता है? शिफ्ट इनपुट। फाइन, ये टर्मिनोलॉजीज है। n माइनस के का मतलब क्या है? कि ब्रैकेट के अंदर n माइनस के। तो ब्रैकेट के अंदर n माइनस के का मतलब ये है कि अगर समझो एग्जाम्पल से वाला क्वेश्चन आपने देखा कि यहां पे मैंने लिखा था x ऑफ 2n, एक सेकेंड, x ऑफ 2n है ना, तो n माइनस के का मतलब क्या है? कि ब्रैकेट के अंदर n माइनस के। सो डोंट राइट लाइक दिस सर, डोंट राइट लाइक दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। You have to write x of 2n minus k, खत्म हो गया। You just have to append minus k at the end in the bracket. Don't replace n by n minus k in the brackets. समझा क्या बोला मैं? यहां पे आप क्या करोगे? If you look at the expression, यहां पे क्या था सर ये वाले केस में? In this case it was 2n. तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं? फॉर y ऑफ n माइनस के आई विल बी सिंपली अपेंडिंग माइनस के, दैट्स इट, खत्म। उसके अंदर जाके n माइनस के ये सब नहीं करने का। कभी करने का? जब हम लोग करने वाले n कॉमा के, जहां जहां n माइनस के। आई होप द कंफ्यूजन इज क्लियर टू यू। yes, fantastic, correct. Is it clear sir? Any confusion? हाँ, एग्जाम्पल देखेंगे ना हम लोग, ऐसे एग्जाम्पल्स। आप इसकी बात कर रहे हो, ये वाला केस है ना, फिर एक सेकेंड, हाँ ये वाला 2 ऑफ x ऑफ n, हाँ n minus 6 basically ऐसा x of 2 of n minus 3 ऐसे रहा। हाँ माइनस के बस यहाँ पे माइनस के एक्स्ट्रा ऐड। हाँ, या इसका खोल भी सकते हो, यू कैन ओपन दिस ना, 2n माइनस 6 हो जाएगा माइनस के। हाँ, और सेकेंड टाइम क्या करोगे? जहां पे n है वहां पे n माइनस के करोगे, तो हो जाएगा 2 n माइनस के, फिर ब्रैकेट से, हाँ ऐसा। ओके, परफेक्ट। Come on, done. Example 4 is over. Example 4. Any doubt in example 4? Y of n equal to n times x of n. तो n minus k, second time पे क्या हो जाएगा? n minus k x of n minus k. Both are not same. System is variant. Done. Last example. Try this. Sir, try this question. You will understand more better way. So यहाँ पे मैंने क्या किया है? माइनस n माइनस के। सेकेंड टाइम क्या करूंगा मैं? माइनस ब्रैकेट के अंदर n माइनस के। फर्स्ट टाइम क्या करना है? सिर्फ माइनस के अपेंड करना है, करके वो क्या हो गया? माइनस n माइनस के। सेकेंड टाइम क्या करेंगे? जहां पे n है उसको देखने का, वहां पे शॉर्ट मारने का, n माइनस के। तो माइनस ऑफ n माइनस के बिकम व्हाट? माइनस n प्लस के। एंड नाउ यू कैन से बोथ आर नॉट सेम, सिस्टम इज वेरिएंट। फैंटास्टिक, गॉट इट सर? नेक्स्ट, स्टेबल अनस्टेबल। What is the meaning of stable, unstable? Stable, unstable पढ़ने के लिए बेबो को याद करना होता है। How many of you know बेबो? अरे बेबो नहीं मालूम क्या? क्या यार बेबो, इतना इंटेलिजेंट बच्चा देख, मतलब करीना कपूर। Bebo started her, Bebo बाहर नहीं है, they're watching Bebo is outside. Okay, you know the life of Bebo. Bebo ने क्या किया?
बेबो चार्म लाइट में आ गई, बाद में बेबो ने शादी कर दिया सैफ के साथ में, मैं रात के 2 बजे तक दारू पिया। फाइन, चलो शादी होने के बाद में 2 बच्चे पैदा किया, बाद में क्या हो गया, उसका करियर धीरे धीरे कम कम होना शुरू हो गया, डिमिनिशिंग। अभी दिखती नहीं बेबो किधर है क्या मालूम। कहने का मतलब यह है कि स्टेबल रहिए या फिर डिमिनिश होना शुरू हो जाइए। इसको हम क्या कहते हैं, बेबो, BIBO, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ऐसा अगर हो गया सिस्टम को स्टेबल बोलने का मतलब क्या है इसका, अगर मैं कोई भी सिस्टम को इनपुट देता हूं जो कि बाउंडेड है और आउटपुट भी बाउंडेड आ गया, सिस्टम को स्टेबल कहा जाएगा। मतलब do the example of 2. What is 2? A constant. Is 2 bounded or unbounded? Bounded. क्या आंसर मिलेगा? 2 2s are. Is 4 bounded unbounded? System is stable. आपने इंफिनिटी दिया, इंफिनिटी बाउंडेड है अनबाउंडेड है, क्या मिलेगा आपको आउटपुट? सिस्टम इज अनस्टेबल। अनदर एग्जांपल, आपने दिया 0, क्या दिया आपने? 0, 1/0, इंफिनिटी, 1/0 ना, इंफिनिटी, क्या मिलेगा आपको? अनबाउंडेड। मीन्स इफ यू गिव बाउंडेड इनपुट and you get bounded output, system is stable. But if you give a bounded input and you get unbounded output, system will be unstable. Example देखिए सर यहाँ पे क्या लिखा गया है, this is known as BIBO stability. BIBO stability, bounded input दिया, bounded output मिला, system stable है, बाउंडेड इनपुट दिया, अनबाउंडेड आउटपुट मिला, सिस्टम अनस्टेबल है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखे रखा है, x of 2n, फाइन, BIBO स्टेबल, n-1 BIBO स्टेबल। सर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ये वाले केस में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक भी वीडियो मैंने शेयर किया था, ये वाला केस, इज इट स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल ना, इट इज डिक्रीजिंग, स्टेबल। व्हाट अबाउट दिस केस? स्टेबल नहीं, ये वाला इट इज गोइंग इन दिस वे, ऐसा जा रहा है उल्टा वाला, u of minus n minus 1, u of minus n minus, what is the meaning of u of minus n minus 1? u of minus n minus 1 का मतलब ये होता है कि इट इज द ग्राफ विल बी लाइक दिस, this is the graph of u of minus n minus 1. You can use either left side approach or right side approach. Fine, okay, you'll get this kind of graph. System will be unstable. Take the example of this case, sir. Take the example of this case. This is stable or unstable? Unstable. It is going in the upward direction. Unstable system, upward direction. बोलो बोलो। हाँ, ये वाला ये stable हो जाएगा because minus and minus 1 है यहाँ पे. Fine, got it? Okay. What about this case? Unstable. Fine. Less than 1. It is 2 raised to n. See, listen carefully. It is from 1 to 7. 0 to 7 यहाँ पे दिया हुआ, क्या यहाँ पे only 0 from 0 to 7. Fine. 0 to 7. तो up to 7 it is only there. That system is stable. अगर यहाँ पे infinity होता तो फिर वो unstable होता. Got it, sir? Understood what is the meaning of this? I have shared the thing with you. You can go and check it out. No issues. If still there is any doubt, you can ask me. That's all for today's session.